Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we're gonna start with understanding the target variable in credit risk. So a bank built a model with 95% accuracy, but still lost crores. Have you ever thought about it? Why? This is because the target variable itself was wrong. So in today's video, I'll explain this critical concept in credit risk modeling, target variable definition, with examples used in banks. So let's get started. So, what is target variable definition? What do we mean by target variable? So, basically, target variable is equal to what we are trying to predict. So, in credit risk, it usually means will the customer default or not. So, in credit risk, our main purpose is to determine whether the customer will be defaulting or not. So, for example, loan approval. If we build a loan approval model, so here we will predict whether the customer is defaulting or not. So, whether it is a yes or a no. Yes means defaulting and no means it is not defaulting. Let's say we build a collection model. So here we will determine whether will the customer in collection model our main purpose is to collect the remaining outstanding balance from the customer. So will the customer miss payment? That's our prediction. If yes, then we proceed that accordingly. Let's say we build an early warning model. Early warning model. So here what the model can predict? It can predict will the customer become risky. बेसिकली हम पहले से ही प्रिडिक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, जानने का कोशिश कर रहे हैं. सो आवर की लाइन वुड बी दैट योर मॉडल इज ओनली as good as your target variable. क्यों? Why? Because a target variable, if a target variable, the definition of a target variable is appropriately defined, only then the model assessment, only then the model building and the assessment part will only be done good. अगर प्रोडिक्शन जो हमें करना है वही हमारे माइंड में क्लियर नहीं है, then we cannot rely on the model build during our process. So we'll understand in detail why target variable definition is critical. क्यों जरूरी है हमारे लिए ये? So if this definition is not correct, the bank can undergo the financial losses. क्योंकि मॉडल सही से प्रिडिक्ट नहीं करेगा, मॉडल सही प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है. देयर कैन बी रेगुलेटरी इश्यूज एज वेल. Also, poor model can perform poorly in real life. Poor model performance in real life, and there can be wrong business decisions as well based on that model output. Wrong business decisions. So these are some of the important points which helps us understand the consequences if we pick up the wrong definition of our target variable. So let's say two banks, they can use same data. Banks can use same data but different target. This can happen because each bank has their own requirement from that particular data. So one should build completely different model. This is the target defined. So what is default? डिफॉल्ट क्या होता है?
So अगर हम if we go about the regulatory definition as per the who is our regulatory committee? It is as per the Basel Committee on Banking Supervision. इसको हम BCBSB कहते हैं. So here यहाँ पर क्या होता है? That my default, this Basel BCBS committee says that my default is 90 plus DPD, which is days past due. So let's say if a customer misses the payment, if a customer is missing the payment for say 90 days, this is considered as default. If a customer is missing the payment for say 90 days, then it is considered as default. So that is as per the Basel committee. बट बैंक्स जो है यहाँ पर रुक नहीं जाते हैं. बैंक्स जो है वो इसके अलावा they must include more points such as the write off accounts, the settlement that may have happened in the for the customers, if any account being bankrupted or not, bankruptcy, and the restructured accounts as well. This is the customer requirement. हमको अपनी डिफॉल्ट डेफिनेशन को डिटरमिन करने के लिए 20 इन पॉइंट्स का भी हमें कंसीडर करना चाहिए. सो डिफॉल्ट इज नॉट जस्ट अ टेक्निकल डेफिनेशन, इट इज बेसिकली अ बिजनेस डिसीजन. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आता है which we will see here in short is the performance window and the observation window. Performance window and the observation window. And this is where most beginners struggle. So first we will go with the observation window. इसको हम आगे डिटेल में भी देखेंगे, बट अभी हम छोटा सा ग्लिम्स देख लेते हैं. सो ऑब्जर्वेशन विंडो इज बेसिकली द टाइम पीरियड where you collect the data meaning features. That is our observation window. So for example, you pick up an observation window of collecting the features as January 2023 to June 23. For this 6 months period, you will take the data to build the features. Got it? And then there comes the performance window. This is the time period where you check if default happened or not. So say, for example, you pick up July 2023 to December 2023. You have 1 year of the data and you divided it into 2. The performance window and the observation window. Now, so here to understand the customer behavior from Jan to June, we will predict whether they will default in next 6 months. So from this example, what do we get is that using customer behavior from Jan to June, ये हमारा ऑब्जर्वेशन विंडो था. यहाँ से यहाँ पर हम जो अपना फीचर बिल्डिंग करेंगे ऑब्जर्वेशन विंडो, एंड यूजिंग दिस we will predict whether they will default
इन नेक्स्ट 6 months, और ये नेक्स्ट 6 months हमारे कौन से हैं? दिस इज जुलाई 2023 टू December 2023. So what are the important concepts that we need to figure out here? That is the 6 month window and the 12 month window. ये हम आगे देखेंगे. And this 12 month window is common in IFRS 9. So this performance window, observation window का हम एक सेपरेट एक डिटेल हम समझेंगे कि हम इसको कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टारगेट डेफिनेशन. टाइप्स ऑफ टारगेट वेरिएबल हमारे किस तरीके के हो सकते हैं. टारगेट वेरिएबल definition. The first can be the binary target, which everybody looks at around. The binary target. The common one meaning default, 0 meaning non-default. Non-default. ये सबसे कॉमन है. Second one definition we can create it based on DPT based target. DPT based target. इसमें हम क्या देख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल डिफॉल्ट हम कैसे डिफाइन करें? दैट डिफॉल्ट कैन बी, अगर लेट से 30+ DPD हो गया है तो डिफॉल्ट है, अदरवाइज नहीं है. और इट कैन बी कि अगर 60+ हो गया तो हम डिफॉल्ट मान रहे हो, नहीं तो नहीं मान रहे. और इट कैन बी 90+ DPD or not. So here we'll explain the trade-off. Like 30+ DPD meaning early detection हम कर रहे हैं अपने defaulted customers को, but it can be too noisy क्योंकि हम जल्दी predict कर रहे हैं. 90+ DPD अगर हम choose करते हैं, it considered to be the most stable definition, but हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम लेट प्रिडिक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा. सो हेंस वन शुड डिटरमाइन द ट्रेड ऑफ व्हाइल चूजिंग द डेफिनेशन. आपने ये भी सुना होगा कि एक डेफिनेशन हमारी ये भी होती है. तो फर्स्ट हमारी बाइनरी टारगेट हुआ, सेकंड हमारा डीपीटी बेस्ड टारगेट हुआ, थर्ड हमारा होगा एवर वर्सेस पॉइंट इन टाइम. एवर वर्सेस पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवर डिफॉल्ट की. we'll understand what exactly is the ever default. So ever default meaning if customer ever default meaning if customer defaults any time in window. जो भी हमारा परफॉर्मेंस विंडो हम ले रहे हैं उसमें वो कभी भी किसी एक बार भी अगर वो डिफॉल्ट कर गया तो हम उसको 1 मार्क करेंगे, अदरवाइज 0 मार्क करेंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट की. पॉइंट इन टाइम, इस डेफिनेशन पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट, इसमें हम विल चेक द डिफॉल्ट एट स्पेसिफिक टाइम. हमारा जो परफॉर्मेंस विंडो का टाइम है उसमें हम कट्स लगाते हैं और उसमें हम देखते हैं कि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर होराइजन पे कैसा वो डिफॉल्ट का उसका बिहेवियर है. नेक्स्ट डिफॉल्ट कैन बी ऑफ द कंपोजिट टारगेट. मींस अपनी कस्टमाइजेशन के हिसाब से हमने टारगेट वेरिएबल डिफाइन किया है. आपने कभी देखा होगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से बैंक्स में आपने देखा होगा डिफॉल्ट डेफिनेशन कैन बी 30 DPD F3M और बाउंस अंडरस्कोर
F3M मीन्स F3M का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे? In forward looking in next 3 months, bounce in next 3 months. So this combines multiple risk signals and is more robust. Next type of target variable definition can be vintage based target. This definition is based on loan cohorts and is used in portfolio analysis. आई नो आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा ये सब हमें एग्जाम्पल के थ्रू देखना है, बट व्हाट फर्स्ट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड इज दैट वी शुड नो द कंसेप्चुअल द टर्मिनोलॉजीज, क्या क्या हमारे क्रेडिट रिस्क फील्ड में स्कोर कार्ड बिल्डिंग्स में होता है, एंड देन हम उसको जो है एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिकली समझें. एक डमी एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को हम समझ सकते हैं. सो लेट्स से एक एग्जाम्पल को हम समझते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस टारगेट वेरिएबल हाउ इट इज एक्चुअली क्रिएटेड. So for this we need to observe three things like we discussed in the previous observation window. Next is performance window. एक डमी एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं, फिर हम आगे इसको पाइथन में हम इसको देखेंगे. डिफॉल्ट डेफिनेशन. ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ टारगेट वेरिएबल. So why observation window is necessary? So from here we take input data. From the observation window we take input data with the features. From the performance window here we check the default performance, and the default definition, not default window, the default definition. So in default definition we understand what counts as default. हम किस चीज को डिफॉल्ट मान रहे हैं. This is the 5 types of default definition that we have considered in the past. So let's say हम 90 plus DPD लेके चल रहे हैं. Alright. So now assuming that हमने observation window लिया Jan 23 to June 23. Performance window we took it as July 23 to December 23. And then the default definition is for say 90 plus DPD. Now we'll build a sample snapshot of the data over here, which will help us understand the behavior of the target variable. So let's say we have the customer A, B, C, D. अब जून में उसका बिहेवियर कैसा रहा है, उसका बिहेवियर हमने देखना है. हमारे पास एक्सेल का डेटा रहेगा. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देन मैक्स डीपीडी, और इसके बेसिस पे हमारा जो टारगेट वेरिएबल है वो क्या बनेगा वो आप बताएंगे. सो लेट्स से अभी मैं जो इसका डीपीडी काउंट है वो मैं फिल करते हैं. 60, 20, 0, 0, 30,
ये एक डमी डेटा है जो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने क्रिएट किया है, राइट। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर मैक्स डीपीटी क्या होगा। इस फर्स्ट ए कस्टमर के लिए हमारा मैक्स डीपीटी क्या है, मैक्सिमम डीपीटी इज, पेन चेंज करते हैं, मैक्सिमम डीपीटी इज 120। बी कस्टमर के लिए मैक्स डीपीटी इज 0। कस्टमर सी के लिए मैक्स डीपीटी इज 120। यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज करते हैं। एंड फोर्थ कस्टमर डी के लिए मैक्स डीपीटी इज 0। तो अगर हमें इसका बिहेवियर देखना है इस डीपीटी के बेसिस पे, अगर हम कुछ अपने लिए नोट करना चाह रहे हैं तो इस कस्टमर का बिहेवियर कैसा रहा है, आप बताइए। इस कस्टमर का बिहेवियर कैसा है। ये कस्टमर थोड़ा रिस्की है क्योंकि इसने ज्यादा डीपीटी क्रॉस किया है। ये फिर भी थोड़ा एवरेज कस्टमर है क्योंकि 30 डीपीटी ही हुआ है। 120 हुआ है, रिस्की कस्टमर है। एंड 0 को कुछ भी डीपीटी नहीं है तो ये कस्टमर हमारा अच्छा कस्टमर है। अब इस कस्टमर के डेटा एनालिसिस के बेसिस पे हम ये देखेंगे कि हमारा टारगेट वेरिएबल क्या बनेगा। ठीक है, कस्टमर ए बी सी डी, ये हमारा यहाँ पे टारगेट वेरिएबल हमें डिफाइन करना है। हमने अपनी डेफिनेशन क्या चूज करी थी, डेफिनेशन हमने चूज करी थी डिफॉल्ट डेफिनेशन इज 90 प्लस डीपीटी। सो अगर किसी कस्टमर का डीपीटी 90 प्लस हो गया है हम उसको टारगेट वेरिएबल 1 असाइन करेंगे, अदरवाइज 0 असाइन करेंगे। एंड इवन इफ हम यहाँ पर जो है एवर लेके चल रहे हैं, even if a customer default once in that performance window, so ये जो है जुलाई टू दिसंबर, ये इसका परफॉर्मेंस विंडो। इस परफॉर्मेंस विंडो में हम एवर डिफॉल्ट लेके चल रहे हैं दैट इवन इफ अ कस्टमर डिफॉल्ट वंस ड्यूरिंग दैट टेन्योर, वो कस्टमर को हम डिफॉल्ट जो है 1 उसका मार्क करेंगे। तो आप बताइए फर्स्ट कस्टमर ए का जो है 120 90 प्लस जो है कब क्रॉस किया है, इट क्रॉस्ड इन अक्टूबर के महीने में क्रॉस हो गया, इसलिए ये 1। कस्टमर बी का क्या उसका 90 प्लस पूरे 10 आवर में क्रॉस हुआ है, नहीं हुआ, उसके लिए आएगा 0। कस्टमर सी का 90 प्लस इसका अगस्त में ही क्रॉस कर दिया कस्टमर सी के लिए, और ये जल्दी क्रॉस हो गया तो वो ऑलरेडी रिस्की जोन में सेकंड मंथ में ही बैठा है, 1। कस्टमर डी पूरा क्लीन कस्टमर है, ये कैसा कस्टमर है, क्लीन कस्टमर है। सो टारगेट वेरिएबल इज 0। सो टारगेट वेरिएबल, द टारगेट वेरिएबल is not based on past behavior, is not based on, हमने देखा ना हम परफॉर्मेंस विंडो को देखा तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन पास्ट बिहेवियर बट इट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर आउटकम। अगर आप इफ यू आर यूजिंग जुलाई टू दिसंबर का डेटा, जो हमारा परफॉर्मेंस का डेटा है, अगर जुलाई का दिसंबर का डेटा में अगर आप फीचर्स क्रिएट कर रहे हो वहां पे बैठ के तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। सो द करेक्ट वे टू बिल्ड टारगेट वेरिएबल डेफिनेशन इज कि फीचर्स के लिए हम ऑब्जर्वेशन विंडो चूज करें जिसमें हम अपने कस्टमर को एनालाइज कर रहे हैं, जो हमारे एग्जांपल में जनवरी टू जुलाई था। एंड टारगेट वेरिएबल के लिए हम उसका परफॉर्मेंस विंडो चूज करें विच इज जनवरी टू जून एंड इट इज जुलाई टू दिसंबर। एंड इफ यू मिक्स दीज तो हमारा मॉडल, अगर आप इसको मिक्स कर देंगे तो मॉडल जो है वो आपको गलत आउटपुट देगा। एंड दैट इज दिस मिक्सिंग इज नोन एज डेटा लीकेज। So what is the data leakage? If you mix the features and target window, so model will cheat.
एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू कंसीडर कि ऐसा नहीं होना चाहिए. सो अभी तक हमने क्या देखा कि इफ अगर मैक्स ऑफ डीपीडी कहाँ पे डीपीडी इन परफॉर्मेंस विंडो, जो भी हमारा डीपीडी परफॉर्मेंस विंडो में है, इफ मैक्स ऑफ दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, देन हमारा टारगेट क्या बना रहे हैं हम उसको 1, एल्स टारगेट इज इक्वल टू 0. बट इन रियल बैंक्स जरूरी नहीं कि वो ऐसे सिंपल डेफिनेशन लेके चले. रियल बैंक्स में कभी कभी जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ डेफिनेशन भी चूज करी जाती है. सो फॉर लेट्स से वहां पर ये भी हम चूज कर सकते हैं बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द डेटा सेट दैट वी हैव कि टारगेट इज इक्वल टू 1 इफ डीपीडी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 इन नेक्स्ट 6 months, जो हमने F3M की बात करा था. या फिर ये बहुत कॉमन है कि कभी कभी जो एनबीएफसीज में चेक बाउंस को भी लिया जाता है, बट चेक बाउंस इज हैपनिंग इन नेक्स्ट 3 months. और या फिर रिटर्न ऑफ हो गया लोन का. तो इधर ऑफ द थ्री डेफिनेशन में कुछ भी अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो उसको हम टारगेट वेरिएबल एज अ 1 मान के चलते हैं. तो कभी कभी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस भी होती हैं, और कभी कभी जो है बिजनेस के बेसिस पे भी बिजनेस ड्रिवन लॉजिक भी लगाया जाता है. सो लेट्स से इफ इंटरव्यूअर आस्क्स यू, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है दैट हाउ डिड यू डिफाइन टारगेट वेरिएबल, आप कैसे डिफाइन कर रहे हो टारगेट वेरिएबल को. तो you just never say कि just 90 plus DPD. You should explain full logic. Always try to explain full logic. Window, what is the window? What is the definition? Window कौन सा, performance plus observation window. What exactly the definition are you choosing and why you are choosing? This is the work that you have done. अभी लेट्स से एक केस आ जाता है दैट कस्टमर क्लोजेस लोन अर्ली. ये वो केसेस हैं व्हाट नीड्स टू बी कंसीडर्ड, व्हाट नीड्स टू बी फोकस्ड केसेस फॉर टारगेट वेरिएबल. टारगेट वेरिएबल बनाते टाइम हमें कौन से केसेस का ध्यान रखना चाहिए. तो केस 1, लेट्स से कस्टमर ने अपना लोन जो है जल्दी क्लोज कर लिया है. जल्दी लोन क्लोज कर लिया तो इसका मतलब उसका फ्यूचर डेटा नहीं रहेगा हमारे पास, नो फ्यूचर डेटा, क्योंकि उसका लोन जो है जल्दी ही क्लोज हो चुका है. तो ऐसे डेटा को हमें यूजुअली रिमूव कर देना चाहिए. केस 2 हमारे पास हो सकता है कि मिसिंग डेटा नहीं है हमारे पास. ऐसे डेटा को हमें ध्यान से देखना चाहिए. नीड केयरफुल हैंडलिंग एंड ऑल्सो कोई पैटर्न वगैरह कुछ ऐसा है या नहीं वो भी हमें देखना चाहिए. फाइंड पैटर्न, कोई टाइम से रिलेटेड पैटर्न है या नहीं, या कुछ पर्टिकुलर किसी सीजन की वजह से या किसी क्राइसिस की वजह से कुछ मिसिंगनेस हुआ है, वो चीज हमें देखनी चाहिए. थर्ड केस एक हो सकता है कि लेट्स से कस्टमर में मल्टीपल, केस 3 ये भी हो सकता है कि कस्टमर ने मल्टीपल लोन्स ले रखे हैं. तो उसमें हमें ये देखना चाहिए, हमें ये चूज करना चाहिए that whether we need to define a loan level target or customer level target. लोन लेवल टारगेट मीनिंग कि हम होम लोन दे रखा है या नहीं उसको डिफॉल्ट कर रहे हैं. कस्टमर लेवल मीन्स कि पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कस्टमर जो है कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं. तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए. सो इन समरी what we need to do, we take what we have seen so far is we take
past data as features. We look into future window, look into future window. We check if default happen and assign 1 or 0. I know you must be thinking of the examples and so to understand it more clearly ये सब हम आगे जरूर देखेंगे बट फर्स्ट माई आइडिया इज टू बिल्ड अ बेस कॉन्सेप्ट सो दैट हम ये आगे चीजें जब हमारे पास एग्जाम्पल्स आएंगे तो हम क्लियरली उसको समझ सकें. अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम देखते हैं कि जो जनरली हो जाती हैं. कॉमन मिस्टेक्स, कभी कभी डेफिनेशन बनाते टाइम टू स्मॉल डेटा, ज्यादा कभी कभी छोटा डेटा यूज कर लिया जाता है टू मेक द डिफॉल्ट डेफिनेशन. कभी कभी राइट ऑफ्स को इग्नोर कर दिया जाता है. तो इग्नोरिंग राइट ऑफ्स इग्नोर, उससे हमें फुल पिक्चर नहीं मिलता है. रॉन्ग विंडो अलाइनमेंट, रॉन्ग विंडो अलाइनमेंट क्लियर नहीं होता है कि ऑब्जर्वेशन विंडो एंड परफॉर्मेंस विंडो हमें क्या लेना है, जिस वजह से डेटा लीकेज होने के चांसेस हो जाते हैं. ये सब हम आगे एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे, so please don't worry regarding that. So the most bad models fail not because of the algorithms, it generally fail because of these common mistakes, because of the bad target definition. तो हमें अपने मॉडल में एल्गोरिथम फिट करने से पहले हमें अपने डेटा के बारे में ध्यान देना चाहिए. कहाँ से डेटा लेना है, व्हाट एग्जैक्टली आर द डेटा सोर्सेस, उसका मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है, आप मेरे चैनल पे जाके जरूर देखिए. And then but most important is the bad target definition, and that's what makes a good model. So if you have understood this so far, we'll further cover what exactly is the TTC versus PIT. I know आप ये सब डिटेल में समझना चाह रहे हैं. आगे हम IFRS 9 में लाइफ टाइम वर्सेस 12 मंथ इसको भी डिस्कस करेंगे. एंड ऑल्सो हम सेगमेंटेशन बेस्ड टारगेट्स ये भी हम कवर करेंगे. So if you have understood this, you are already very much ahead of all the other candidates, and I would highly request you to go through this video in a very detailed manner. Why? Because टारगेट वेरिएबल डेफिनेशन ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फेज होता है, जिसमें हमें ये नहीं पता चल पाता कि कौन सी पर्टिकुलर डेफिनेशन हमारे मॉडल के लिए ठीक रहेगा. वी नीड टू ट्राई डिफरेंट definition. So let's say if I change in our example, let's say if I change default अगर मैं डिफॉल्ट, हमने लास्ट में 90 प्लस 90 डीपीटी लिया था राइट, जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था. अगर 90 प्लस डीपीटी को अगर हम 30 प्लस डीपीटी में कर देंगे चेंज, तब क्या होगा मॉडल का टारगेट वेरिएबल कैसे बनेगा. So I would like you to let me know in the comments so that it would help me whether you have understood the basic concept of target variable definition or not. तो अभी तक हमने क्या देखा है, दैट हमने एक ऑब्जर्वेशन विंडो के बारे में देखा, ऑब्जर्वेशन विंडो, और हमने परफॉर्मेंस विंडो के बारे में देखा. एज अ समरी आई एम जस्ट ट्राइंग टू समराइज. ऑब्जर्वेशन विंडो हमने क्या लिया था, जैन टू जून. परफॉर्मेंस विंडो हमने क्या लिया है, जुलाई टू दिसंबर. हमारी ऑब्जर्वेशन विंडो किस चीज के लिए यूज होती है, फीचर्स बिल्डिंग के लिए. जुलाई टू दिसंबर वाला परफॉर्मेंस विंडो हमने क्यों यूज किया,
टारगेट वेरिएबल के लिए, टू बिल्ड द टारगेट वेरिएबल। नेक्स्ट वीडियो में हम इस ऑब्जर्वेशन विंडो एंड परफॉर्मेंस विंडो को डिटेल में समझेंगे। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल, and my idea is to build a full series of or the conceptual understanding of the scorecard modeling, and then we will shift to these concepts of TTC, PIT, RFRS 9, Basel, regulatory guidelines, and so on. So please stay tuned to my channel. We will then meet up in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much.